Zafar, VPI of IFMSA, and I'm Arisha Fatma, General Secretary of IFMSA from 4th year G11. I think all of you will agree that when we first step into the medical college, all of us are really excited about doing actual procedures and actually doing stuff that would make an impact on the life of the patients. And that is what excites us most, isn't it? Right. It feels like a huge milestone when you are starting to picturize yourself in scrubs, doing procedures, making a difference and having a life-saving procedures. So for this purpose we have arranged such a seminar and activity, one-day activity in which we will tell you about IV injection practices and IV sample and cannulations. Because the most important part of the procedures is that it is not just excitement. The important part is that you have to perform the procedure right every time. And if you are performing 50 to 60 injections a day, and you have to get them all right, because if you do not get them right, it would produce a great impact on the life of the patients. And you don't want that to be a negative impact, because it can cause various kinds of complications. So this seminar is mainly conducted to help you practice these skills and to perfect these skills, because you don't have to practice these kind of skills on the patients, and it would be very, very harmful if these complications will occur on the patients on your first attempts because of the trembling hands and that kind of anxiety that we all have experienced. So let's start our seminar. First, we would like to welcome our host, our dear professor, who has come from the surgery department to help us understand these procedures. Dr. Ahmed Gilani, PGR Surgery Unit 1. I would like to thank him first of all for taking some time out for us and investing his time on us. His dedications towards our activity and seminar is commendable, and I would like to tell one thing about him, that he is running a well-known YouTube channel. Kindly, you can, if we want to learn and further techniques, we can go and we can refer to that YouTube channel also. Please give a big round of applause and we will start in that seminar. Please, sir. Assalamu alaikum. Surgeon Dr. Ahmed Gilani is there, and definitely first of all हम सिर्फ practical चीज़ों की तरफ जाएंगे. It will not be a boring lecture for you people. Just multimedia start हो जाता है, then हम थोड़ा सा कुछ theoretical बातें करेंगे और उसके बाद जो है ना हम direct practical hands on पे जाएंगे. So don't worry, this is not going to be a boring session for you people. Asif Qureshi and Dr. Rizwan Asghar Sahab. And then there is an outline of the IV sample. Here we will cover only two things: IV sampling, then IM injection. Here your technique matters a lot. यहाँ पे अगर हम आपको सिर्फ एंटीसेप्टिक टेक्निक्स, एंगल्स और थोड़ा सा कुछ प्रोसीजर के प्रोटोकॉल्स बता पाएँ तो दिस विल बी आवर सक्सेस. सो इंजेक्शंस डेफिनेटली आप सब जो है ना इस चीज़ से फेमिलियर हैं, और पर्सनली मैं अमूमन आमतौर पे देखता हूँ कि घरों के अंदर जो हमारे न्यू डॉक्टर्स हैं दे आर कंसीडर टू बी डॉक्टर्स कि अगर उनको इंजेक्शन लगाने आते हैं. अदरवाइज लोग कहते हैं तुम लोग कैसे डॉक्टर, तुम्हें इंजेक्शन लगाने नहीं आता. सो दिस इज़ अ सॉर्ट ऑफ मिसकंसेप्शन भी आप कह सकते हैं, बट एनीवेज दिस शुड बी मैटर ऑफ डिबेट. So definitely this is the simplest procedure, but this has got very troublesome hazards. Like if you are not cautious about the infectious diseases, you can transmit the hepatitis B, hepatitis C and HIV. That's the dreadful ever complication.
To resolve this problem, the WHO recommends that all the injections be given with a new sterile syringe and the needle opened from a new packet. पुराने ज़माने में होता ये था कि एक ही सिरिंज अमूमन डिस्पेंसर होते थे, नॉलेज इतना स्टरलाइजेशन का इतना ज़्यादा नहीं था, तो अमूमन वो ये करते थे एक ही सिरिंज कई लोगों को लगाते थे, और अगर एक बंदे को हेपेटाइटिस सी है तो वो सारे के सारे पेशेंट्स को ट्रांसमिट हो जाया करता था. और समटाइम्स स्पेशली अगर मैं बात करूँ साउथ पंजाब के अंदर, जैसे WHO ने भी कहा है कि 70% इंजेक्शंस वो अननेसेसरी होते हैं. मैं देहात के लोगों को देखता हूँ, स्पेशली साउथ पंजाब चूँकि पसमानदा इलाका है और बाकी कुछ इलाके भी हैं, तो वहाँ पे जो पेशेंट्स मेरे पास आते हैं, आई एम ए सर्जिकल पर्सन, जो सर्जरी के मरीज आते हैं, समटाइम्स उनमें इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं होती. वो अपने माइंड में लेके आते हैं कि हम एक ताकत का इंजेक्शन लगाएंगे तब ही हम ठीक होंगे, अदरवाइज़ हम ठीक नहीं होंगे. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सिंपल ओरल मेडिकेशन से ठीक हो सकती हैं. सो गेट टू द पॉइंट, मेक स्मार्ट चॉइसेस according to the WHO Health Organization. So IV sampling technique. IV blood sampling is the process of drawing blood from the patient vein for laboratory testing and to diagnose and monitor health conditions. जैसे कि आपको पता है कि एक तो हम ब्लड ड्रा किस लिए करते हैं, कुछ इन्वेस्टिगेशन करा रहे होते हैं, जैसे कि CBC हो गया, वायरल मार्कर हो गया, LFTs हो गया, RFTs हो गया, या बाकी जितनी भी इन्वेस्टिगेशंस हैं. और दूसरा पर्पज़ इसका क्या हो सकता है, जो आम ज़ुबान में लोग कहते हैं कि ताकत की ड्रिपें और वो इंजेक्शन, एंटीबायोटिक्स भी हम दे सकते हैं, बाकी चीज़ें भी कर सकते हैं. क्योंकि मेरी ऑडियंस यहाँ पे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और फाइनल ईयर तक के सारे स्टूडेंट्स हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि अपनी लैंग्वेज को टेक्निकल से ज़्यादा सिंपल रखूँ ताकि आप कुछ 2-4 अल्फाज गेन कर पाएँ. इक्विपमेंट्स आपको क्या चाहिए, सबसे पहले इनका आपको नाम पता होना चाहिए. आपके पास IV कैथीटर्स होते हैं, सिरिंजेस होंगी, टोर्निकेट होगा, अल्कोहल वाइप्स होंगी, ग्लव्स होंगे, स्टीराइल ड्रेसिंग होंगी, गाज एंड द टेप. न सिर्फ आपने अपनी सिक्योरिटी का खास ख्याल रखना है, बल्कि आपने अपने जो है ना पेशेंट्स की सिक्योरिटी का भी खास ख्याल रखना है. दैट्स द पर्सनल इक्विपमेंट्स की बात हो रही है, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स की बात होती है, जहाँ पे ग्लव्स आप यूज़ करते हैं, मास्क यूज़ करते हैं, बाकी चीज़ें यूज़ करते हैं. एनाटमी ऑफ द कैनुला एक छोटी सी पिक्चर है, इसमें आपको सारा पता होना चाहिए कि फ्लैशबैक चैम्बर है, ल्यूर लॉक प्लग है, नीडल ग्रिप है, इंजेक्शन पोर्ट कैप है, बुशिंग है, कैथीटर है, नीडल है, वेल्व है, कैथीटर हब और ल्यूर कनेक्टर. ये सारे आपको चीज़ों का आइडिया होना चाहिए, बट इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको टेक्निक इस चीज़ की पता होनी चाहिए. हाँ, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि साइज़ का पता होना चाहिए. अमूमन आमतौर पे अगर मैं एक सर्जन हूँ तो मैंने डेफिनेटली ऑपरेट करना है और मुझे रिससिटेशन चाहिए. रिससिटेशन का मतलब यह है कि मुझे ज़्यादा अमाउंट फ्लूइड का देना है कम टाइम के अंदर ताकि पेशेंट रिससिटेट हो जाए, या फिर आई हैव टू मैनेज द शॉक. जबकि मेरे पास पेशेंट आते हैं RTA के या जितने भी मेजर ट्रेजिडीज़ के पेशेंट आते हैं, तो वहाँ पे अगर सपोज एक बंदे ने लगाया हुआ है ऑरेंज कलर का कैनुला लगाया हुआ है, तो डेफिनेटली इट विल बी अ गुड साइन फॉर मी कि मैं रैपिड ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकता हूँ और ट्रॉमा और सर्जरी को मेंटेन कर सकता हूँ. इसके बरक्स अगर मैं देखता हूँ कि अगर सपोज दैट एक सर्जरी का पेशेंट है और उसमें आपने लगाया हुआ है 26 गेज का कैनुला जिसका कैलिबर बहुत छोटा है, तो डेफिनेटली ये मेरे किसी काम का नहीं होगा. क्यों? उसकी वजह यह है कि ये अमूमन आमतौर पे बहुत स्लो अमाउंट में आपको और बहुत स्लो टाइम के अंदर फ्लूइड दे पाएगा, और शॉक के पेशेंट के अंदर तो हम मैनेज नहीं कर पाएंगे इस चीज़ की मदद से. सो अप्रोप्रिएट साइज़ भी आपने अपनी इंडिकेशन के इंडिकेशन के हिसाब से आपने सेलेक्ट करना है. सो देयर आर कलर ग्रेडिंग, जो कि बड़ी अच्छी बात है कि आप उसकी मदद से आप उसका साइज़ और उसकी इंडिकेशन आप देख सकते हैं. अमूमन आमतौर पे 2 वाइड बोर कैनुलाज वी यूज़. So suitable veins are there. Cephalic veins are there. Basalic veins are there, which are in the arm. Medial cubital veins, which is the most commonly used, and dorsal metacarpal veins and the great saphenous vein. ग्रेट सेफेनस वेन मैं इस चीज़ को फेवर नहीं करूँगा, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जो लोअर लिम्ब की जो भी आप वेन्स इस्तेमाल करेंगे उसमें थ्रोम्बो एम्बोलिज्म का चांस ज़्यादा होता है. तो ज़्यादा बेहतर है कि आप वाइड बोर वेन इस्तेमाल करें, जैसे कि मीडियल क्यूबिटल वेन है, बेजैलिक वेन है, सेफेलिक वेन है. अदरवाइज़ मजबूरी में तो आप कुछ भी कर सकते हैं, उसमें फिर आपके पास चॉइसेस तो होती नहीं है. इवन IV लाइन पास नहीं हो रही होती तो हम वीनस कट डाउन भी करते हैं लोअर लिम्ब के अंदर, जो कि बहुत अच्छा आप ये कह सकते हैं कि प्रोसीजर नहीं है, बट इन केस ऑफ इमरजेंसी वी हैव टू डू दिस थिंग.
सो व्हाट्स द प्रोसेस? डेफिनेटली आपने किसी जगह कैनुला लगाना है तो सबसे पहले अपने माइंड को आप ऑक्यूपाई करोगे। माइंड को ऑक्यूपाई करने के बाद आप ये करोगे कि लोकेट करोगे और पालपेट करोगे। अस्सलाम वालेकुम सर, लेट्स वेलकम प्रिंसिपल साहब। लोकेट करेंगे आप, पालपेट करेंगे उस वेन को, देन यू विल इंसर्ट द कैथीटर एट द करेक्ट एंगल एंड यू विल कंफर्म द फ्लैशबैक ऑफ द ब्लड एंड एडवांसिंग द कैथीटर एंड देन यू विल सिक्योर द आईवी कैथीटर, और उसके बाद आप आईवी लाइन उसमें अटैच कर सकते हैं। सो ट्रबल शूटिंग कॉमन इशूज, समटाइम्स वेन कोलैप्स इज देयर, समटाइम्स वी हैव द डिफिकल्टी इन finding or locating the veins, and sometimes other complications might occur. So this is the picture which I myself taken from a patient in the ward. So this was the case of injection abscess. After that gangrene occurred and we did the debridement, and this is the condition of the wound. So आप ये देखें कि आपके सिर्फ एक गलत टेक्निक की वजह से एक पेशेंट का ये हाल हो जाता है। और इमेजिन करें आपको ये कोई प्यारा बंदा है और आपका रिलेटिव है, तो व्हाट विल बी योर रिस्पांस? आप इमेजिन कर सकते हैं कि हाउ इट इज़ इम्पोर्टेंट कि करेक्ट आईवी लाइन और ये सारी चीज़ें किस तरह से की जानी चाहिए। देन आईवी कैनुलेशन, आईवी इंजेक्शंस जस्ट हम इन्हें इस्तेमाल करते हैं मेडिकेशन के लिए, फ्लूइड्स के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए, डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम थ्रू द वेन। एंड पर्पस क्या है कि क्विकेस्ट मेथड है, ड्रग्स सर्कुलेशन के अंदर पहुंच जाती हैं और दे वर्क देयर। Suitable sites again, median cubital vein, cephalic vein and the dorsal hand veins. Dorsal hand veins इनके बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये थोड़ी सी पेनफुल होती हैं, कोई आइडियल चॉइसेस नहीं होती इस चीज़ के लिए, और इतनी इनके टॉर्चरस का कोर्स होता है, इश्यूज क्रिएट होते हैं इस चीज़ के लिए। बेहतर है कि आप cephalic vein यूज़ कर लें या फिर median cubital vein इस्तेमाल करें। Then the venipuncture at the end. In IM injection, it's a method of administrating the medication deep into the muscles, allowing the rapid absorption into the bloodstream. यहाँ पे इम्पोर्टेंस है थोड़ा सा आपको अवेयरनेस देने के लिए कि ये जो IM इंजेक्शन है, कहा जाता है कि सबसे ईजीएस्ट मेथड है इंजेक्शन देने के लिए, स्पेशली जो क्वैक्स हैं या फिर आप अताई डॉक्टर्स हैं उनके लिए आप कह सकते हैं। तो आप लोग डॉक्टर हैं, डेफिनेटली यू हैव टू फॉलो ऑल द प्रोटोकॉल्स। इसके एडवांटेजेस क्या हैं कि इंश्योर फास्टेस्ट एब्जॉर्प्शन, preferred for medications that are irritating to the veins or need the slow sustained release. आईवी लाइन आपने लगाई वो तो आप डायरेक्टली फ़ौरन से विदिन सेकंड्स विदिन मिनट्स आपकी आईवी लाइन ब्लड के अंदर सर्कुलेशन में चलेगी। यहाँ पे अगर आपको स्लो एक्शन चाहिए, लाइक इन केस ऑफ बेंजाइल पेनिसिलिन अदर मेडिकेशन, तो आपको आईएम इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। कॉमन सिनेरियोज़ क्या हैं कि जहाँ पे वैक्सीनेशन है ये अमूमन आमतौर पर इसी रूट के थ्रू की जाती हैं। लॉन्ग एक्टिंग एंटीबायोटिक्स हैं, हार्मोन थेरापीज़ हैं लाइक टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन, and emergency medication, for example in epinephrine in the anaphylaxis. So these are its uses. Again, what are the common injection sites? Most common site is the deltoid. और यहाँ पे अमूमन आमतौर पे मैंने तो प्रैक्टिस के अंदर एक लैग देखा है, ये कम्प्लिकेशन एक मसला देखा है। अक्सर ये होता है कि स्टाफ नर्सेज या मेडिकल हेल्थ प्रोफेशनल्स भी कुछ ऐसे होते हैं जो करते क्या हैं कि कपड़ा नीचे नहीं कर पाते या पर्दे की किसी भी वजह से वो डायरेक्ट इंजेक्शन लगा लेते हैं, और अगेन हैवक राइजेस देयर। आईएम इंजेक्शन टेक्निक क्या है, यहाँ पे हम ये बात कर लेते हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाई एंड क्लीन द चोजन इंजेक्शन साइट, एंटीसेप्टिक आप उस जगह पे थोड़ा सा वाइप करेंगे। होल्ड द सिरिंज एट 90 डिग्री एंगल, यहाँ पे एंगल मैटर करता है कि 90 डिग्री के एंगल पे आपने लगाना है, आपने एंगल चेंज नहीं करना। Insert the needle swiftly but steadily. Administer the medication slowly and smoothly. यहाँ पे भी आपने सबसे पहले इंजेक्शन जब अंदर इंसर्ट कर ली सिरिंज तो आपने थोड़ा सा प्लंजर को खींचना है और देखना है कि आपका इंजेक्शन जो है वो कहीं वेन या आर्टरी के अंदर तो नहीं है, जिसका पर्पज़ आईएम लगाना था कहीं वो आईएम की जगह आईवी तो नहीं हो रहा। अगेन जाहिर सी बात उसकी अपनी इंडिकेशंस हैं, इसकी अपनी इंडिकेशंस हैं, और अगेन प्रॉब्लम्स इशू हो सकता है हमें। So at the end, just watch this video, the whole procedure. After that, we will do the hands-on on these dummies. First of all, you will explain the procedure. You will introduce yourself, you will introduce the patient, and then you will gain the consent in a respectable manner.
You will take your patient in confidence. You will make this set in which all the equipments are there, alcohol wipe is there, gauze is there, syringe is there, and drying up needle is there. Then medication is there. First of all, you will wash your hands and you will don an apron. You will don the gloves. This is again an important thing, that you will confirm the details on injection. Sometimes some injections they look alike. और suppose that अगर डेक्सट्रोज का इंजेक्शन आपने देना है तो उसकी जगह KCL दे दिया, it will cause the death of the patient. और ये कोई छोटी सी बात नहीं है. You will attach to the syringe and you will position the patient. You have already explained the whole procedure to the patient. Now what he is doing, you will palpate the lower edge of the acromial process in injection in 2.5 centimeter below this. You will clean injection site and allow it to dry, which is not required for the vaccines. You will follow the local guidelines for every vaccine. Apply gentle traction below the injection site, just as shown in the video, and you will insert needle at 75 to 90 degree. So like this. एस्पिरेट प्रायर टू इंजेक्शन मेडिकेशन, वही बात है कि सबसे पहले अगर ब्लड या कुछ चीज़ आ रही है उसमें तो आप इंजेक्ट नहीं करेंगे, आप दोबारा से इस बारे में सोचेंगे. So now you will remove the needle and release the traction and apply the gentle pressure to that, and it is also important that you will dispose in special instruments in the after special cutting, and at the end you will be thankful to your patient, and you will also give the post injection advice. So thanks a lot for your patience. अब इसके बाद जो है ना हम यहाँ पे हैंड्स ऑन करेंगे. स्टाफ शाइस्ता है हमारे हॉस्पिटल से, ही इज़ वेल ट्रेंड इन सारी चीज़ों के अंदर. तो हम कुछ ऐसा अरेंजमेंट बनाएंगे कि पहले 4 बच्चों का ग्रुप बनाएंगे, वो यहाँ पे आएंगे और एक बच्चे को एटलीस्ट IV और IM इंजेक्शन की जो है प्रैक्टिस कराना स्टार्ट करेंगे. सो थैंक यू सो मच. स्टाफ शाइस्ता.